Foreign Mothers. I am going to teach you the chapter Physical and Chemical Change. First, we have to know what is change. Change means when an object is different from its original substance, it is known as change. There are two types of changes: physical change and chemical change. Physical change means in which physical property will change, like state, shape, color. For example, like state, shape, and size. Example, drawing of hair and nails, cutting of papers, burning is physical chemical change. Next is chemical change. Chemical change means it is irreversible change and permanent change. Example of chemical changes are. टी शर्ट पे भी तुम्हारा चेंज लिखा हुआ है ना? वेरी गुड, इसलिए पहन के आए थे। पहले बताओ व्हाट इज चेंज? Change means when an object. क्या मैंने पूछा? हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि टेल मी वन चेंज इन विच द बोथ चेंजेस आर अकर्स, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंजेस बोथ आर अकर्स। हाँ, एक ऐसा है चेंज जिसमें दोनों काम होता है एक साथ। मैंने बताया बेटा कि बच्चों को कौन सा चेंजेस होता है जिसमें दोनों एक साथ होता है? हाँ बताओ। वेरी गुड। बर्निंग ऑफ वैक्स में आप लाओगे तो आपका वहां पर मेल्टिंग भी होती है, दूसरा क्या होता है? बर्निंग। मतलब फिजिकल चेंज भी अकर होता है, दूसरा क्या? Good afternoon everyone, my name is Surajni. I am pleased to teach you types of motion and its definition. So let's start. Motion. The movement of an object is called motion. There are four types of motion: rectilinear motion, circular motion, rotational motion, periodic motion. Rectilinear motion, the motion in a straight path or straight line is called rectilinear motion. Her example is the car in a straight path. सर्कुलर मोशन। Circular motion, motion in a circular path is called circular motion. Its example is a child in a merry-go-round. Rotational motion, when an object moves in one axis is called rotational motion. And an example is spinning top. One is periodic motion. Periodic motion. What are the Object repeats its interval of time. repeats path? Repeats its path of interval of time is called periodic motion. And an example is a child in a seesaw. A child in a Seesaw. seesaw. Okay. This is Pratyush. Today I am going to teach about types of thermometer. There are two types of thermometer: clinical thermometer and laboratory thermometer. Clinical thermometer is a type of thermometer in which Can you please write the names? Clinical and laboratory. clinical thermometer we can use to measure the heat of we can measure the Temperature of the body. temperature of human body and when we use it, after using we should wash it and keep it in safe place. Now laboratory thermometer. Laboratory thermometer is a type of thermometer in which we use in science labs and scientific experiments and etc. In this thermometer the range is -10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius and Right. Clinical में कितना रेंज होता है? 35 degrees Celsius to 75 degrees Celsius.
45 degrees. 42 degrees. 35 to 42 degrees Celsius. After using the laboratory thermometer, we should clean it, and when we use it, so this is a beaker. In this beaker there is some chemical which is hot or cold. We should keep the thermometer at the center and in the bottom of the beaker. So how we cannot measure the temperature by visible when we use the We cannot use the laboratory thermometer to measure the human body temperatures, and we cannot use the clinical thermometer to measure chemicals. Thank you. Hey everyone, this is Mahit and I want to teach about heat, temperature and temperature conversion. तो पहले हम समझेंगे हीट के बारे में. हीट होता क्या है? हीट का मतलब है हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच मेक्स द सब्सटेंसेस हॉटर. हीट एक एनर्जी है जो सब्सटेंसेस को गर्म बनाती है, हॉट बनाती है. फिर हम पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में. टेम्परेचर होता क्या है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज टेम्परेचर. एक ऑब्जेक्ट का हॉटनेस एंड कोल्डनेस वो दिखाते हैं टेम्परेचर. अभी हम पढ़ेंगे टेम्परेचर कन्वर्सन के बारे में. अगर आपको क्वेश्चन दिया होगा फ़ारेनहाइट में, आपको 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32 में मल्टीप्लाई करना है. अगर आपको दिया होगा सेल्सियस में तो आपको 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट माइनस 32 में 32 से मल्टीप्लाई करना है. दिस इज ऑल अबाउट इट. थैंक यू. Everyone, this is Amitesh from class 7. Today I am going to teach about speedometer and odometer. So let's start. So speedometer is an instrument used to measure the speed of a moving object. मतलब किसी एक इंस्ट्रूमेंट जो किसी वस्तु की गति को मापता है उसे हम स्पीडोमीटर कहते हैं. Here you can see the speedometer. इन किलोमीटर पर आवर. फिर हम समझते हैं ओडोमीटर. ओडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट. मतलब एक इंस्ट्रूमेंट जो किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे हम ओडोमीटर कहते हैं. हियर यू कैन सी द एग्जांपल. This is the odometer. This is the distance traveled by the objects. So that's all about speedometer. Good evening everyone. I am Arup Kumar. Today I am teach about neutralization reaction. So let's start. तो पहले समझते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म salt and water is called neutralization reaction. इसमें कभी कभी हीट भी इवॉल्व होता है. तो इसका एग्जांपल हम लोग एक बार देखेंगे. इसका एग्जांपल होता है एसिड प्लस बेस हमको सॉल्ट या वाटर प्रोवाइड करते हैं. और इसका हम लोग एग्जांपल देंगे. तो एसिड में हम लोग लेंगे HCl और बेस में हम लोग लेंगे NaOH. तो हमारा वाटर आएगा और सॉल्ट में हमारा आएगा NaCl लिक्विड. ये इसका एग्जांपल होता है. तो लेट्स थैंक यू. एवरीवन, माय नेम इज अनवर साहब. तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलाइजेशन. तो पहले समझते हैं क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है. तो क्रिस्टलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कूलिंग ए हॉट एंड concentrated solution of a substance to obtain a crystal is known as crystallization. तो क्रिस्टलाइजेशन हम उसे पहले हिंदी में समझा देते हैं, आपको आसानी से समझ आएगा आपको.
तो क्रिस्टलाइजेशन हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम एक हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम एक सब्सटेंस से क्रिस्टल जब पाते हैं, उस प्रोसेस को पूरा कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो हम उसका एग्जांपल लेते हैं, तो हम लेते हैं उसका एग्जांपल है कॉपर सल्फेट पाउडर। तो कॉपर सल्फेट पाउडर में हम जब एक बीकर में कुछ पानी लेते हैं और उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं कुछ ड्रॉप का, तो उससे हम उसे हीट करते रहेंगे कुछ समय तक और उसके अंदर कॉपर सल्फेट पाउडर डालते रहेंगे जब तक वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बन जाए। उसके बाद हम उसे कूल करने के लिए कुछ आवर के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हमें जब बॉटम में उसके कुछ क्रिस्टल के पार्ट दिखाई देंगे, तब उसे हम वो क्रिस्टल पार्ट्स को हम फिल्टर करके अलग कर देंगे और जो क्रिस्टल पाएंगे उसे हम पूरा प्रोसेस को कहेंगे क्रिस्टलाइजेशन। और इसका हम और एक एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे सी वाटर से हम सी वाटर से सॉल्ट भी जैसे उसी तरह से प्रोसेस से पाते हैं। तो आप आशा करता हूँ आपको समझ आएगा। थैंक यू। दोस्तों, मेरा नाम है मोहन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। तो लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज होते हैं कि इंटरेस्टिंग फेनोमेना होते हैं। तो लैंड ब्रिज को सी ब्रिज को छोड़ के हम ये पहले समझते हैं कि जो लैंड होता है वो जल्दी गर्म होता है आज टू कंपेयर सी, और जितना जल्दी हीट होता है और उतना जल्दी कोल्ड भी होता है। और सी जो होता है वो स्लोली हॉट होते हैं और स्लोली कोल्ड भी होते हैं। जब सी ब्रिज में जब कोल्ड एयर सी से आते हैं, सी जब उसके कूल एयर है और कूल एयर जाता है लैंड तक को, और जो लैंड से उससे हीट है। जब हीट एयर जब ऊपर उठता है तो यहाँ पर स्पेस बन जाती है और ये कूल एयर स्पेस को भरने के लिए जाते हैं और उसका साइकिल कंप्लीट करने के लिए ये बार बार चलता रहता है। और जब लैंड ब्रिज होता है वो रात के समय में होता है, और जब लैंड ब्रिज होता है तो कूल एयर जाता है सी के तरफ और सी से उठता है हीट एयर। और उसका ही उल्टा जब कूल एयर यहाँ पर जाता है तो हीट ऊपर जाता है तो यहाँ पर भी एक स्पेस बन जाता है और कूल एयर उस स्पेस को भरने के लिए जाता है, स्पेस कंप्लीट कर देता है। और ये कंप्लीट करने के लिए यही प्रोसेस चलता रहता है। जब हम सी ब्रिज में जाते हैं तो वहाँ पर एक घर जो बना रहता है, और जो घर का जो विंडो होता है इस पर सी के तरफ इसलिए रखा जाता है कि जब दिन में कूल एयर सी से जो आता है वो ठंडी हवा घर पर जाए। और जब लैंड ब्रिज में होता है तो रात में तो कुछ इतना गर्मी नहीं लगती तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आज के लिए इतना, थैंक यू। मैं सौम्य रंजन आज आपको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ाने वाला हूँ। पहले हम जानेंगे कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है क्या। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज अ सिस्टम in which the waste substances are removed। कि मतलब कि हमारे जो वेस्ट सब्सटेंस होते हैं वो हमारे बॉडी से इसी सिस्टम्स के द्वारा रिमूव होते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी के पार्ट्स है, पहले जानेंगे कि किडनी एक पार्ट है जहाँ पर जो रिमूवल होते हैं, जो होते हैं फिल्टर होते हैं, यहाँ पर वेस्ट फिल्टर होते हैं। देन यहाँ किडनी से यूरिन या ब्लडर तक आने के लिए हमको कुछ चाहिए जो कि है यूरेटर हमको हेल्प करता है किडनी से ब्लडर तक जो वेस्ट सब्सटेंसेस है उसको आने के लिए।
ब्लडर एक चीज है जो कि स्टोर करता है यूरिन को, जो यूरिन को स्टोर करता है, जो वे सब स्टोरेज है। देन यहाँ से जो यूरेटर है, यहाँ से वो पास आउट होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। My name is Yanandar Raj. Start topic: kind of clothes we wear in summer and winter. You know that in summer, to prevent dark color clothes, and in winter, usually light color cloth, dark color clothes.